गुड आफ्टरनून बेटे। Good afternoon, sir. हाँ, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। आप लोगों ने कई दिन से कह रखा है मेरे को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, तो आज इसी को देंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग।
So today's topic is gastrointestinal bleeding. Gastrointestinal bleeding. Gastrointestinal bleeding is a symptom of disorder is a symptom of disorder in digestive tract. Gastrointestinal bleeding is a symptom of disorder in digestive tract. So gastrointestinal bleeding is a symptom of disorder in digestive tract. The blood often appears in the stool. The blood often appears in a stool. The blood often appears in a stool or vomit, but is not always visible. Though it may cause the stool, though it may cause the stool to look black and tarry, to look black and to look black and tarry, Tarry, to look black and black or tarry, Tarry. अब ब्लीडिंग ये थोड़ी भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. The level of bleeding can range. The level of bleeding can ranges from the level of bleeding can ranges from mild to severe. The levels of bleeding can be ranged from mild to severe and can be life-threatening.
The digestive tract consists of अब कौन कौन से पार्ट्स इसके होते हैं पता ही है आपको। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ ईसोफेगस, स्टमक, small intestine including the duodenum, small intestine including the duodenum, large intestine or colon, rectum and anus. Gastrointestinal bleeding can occur in any of these organs. If bleeding occurs in esophagus, stomach, or initial part of the small intestine, or initial part of the small intestine, that is duodenum, or the initial means starting of the small intestine, or the initial part of the small intestine which is called duodenum, it is considered as upper GI bleeding. It is considered as upper gastrointestinal bleeding. Bleeding in the lower small intestine, large intestine, bleeding in the lower small intestine, large intestine, rectum or anus is called lower gastrointestinal bleeding. फिर सुन लीजिए, bleeding in the lower small intestine, large intestine, rectum or anus is called lower gastrointestinal bleeding. The amount of bleeding can range from a very small amount of blood. The amount of bleeding can range from
a very small amount of blood to a life-threatening hemorrhage. In some cases, there may be so little hemorrhage. In some cases, there may be so little bleeding or hemorrhage that blood can only be discovered that blood can only be discovered by testing the stool. In some cases, there may be so little of bleeding that blood can only be discovered by testing the stool. Then symptoms. Signs and symptoms of gastrointestinal bleeding. Signs and symptoms of gastrointestinal bleeding can be either obvious, obvious, obvious. इसका दूसरा वर्ड है overt, 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 और hidden मैंने छुपा हुआ, hidden, hidden का दूसरा टर्म है occult, occult. The signs and symptoms of gastrointestinal bleeding can be either obvious or overt or hidden. Hidden का दूसरा टर्म है occult, occult. Sign and symptom depends upon the location of the bleeding, which can be anywhere on the GI tract, from where it starts the mouth and to where it ends, that is anus, and the rate of bleeding. Overt bleeding, overt, O-V-E-R-T. Overt bleeding, O-V-E-R-T. Overt bleeding might show up as फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, vomiting blood
vomiting of blood which might be red, vomiting of blood which might be red or might be dark brown or might be dark brown and resemble coffee grounds in texture and resemble coffee grounds, grounds, grounds in texture, texture. So overt bleeding might show up as, पहला पॉइंट क्या लिखा आपने, vomiting of blood which might be red or might be dark brown and resemble as coffee ground in texture. Second point, black and terry stool, black and terry, T-A-R-R-Y, black and terry, T-A-R-R-Y, terry stool. With occult bleeding, occult, O-C-C-U-L-T. With occult bleeding, we might have with occult bleeding we might have सर में भारीपन होगा, light headedness, L-I-G-H-T, light headed, H-E-A-D-E-D, headedness, N-E-S-S, light headedness, difficulty in breathing, third, fainting माने बेहोश हो जाना, F-A-I-N-T-I-N-G, fainting. Next, chest pain and abdominal pain. So with occult bleeding, we might have lightheadedness, difficulty in breathing, fainting, chest pain, and abdominal pain. Symptoms of shock. Symptoms of shock. एक शॉक कब होगा? अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो. If bleeding starts abruptly, abruptly माने अचानक, A-B-R-U-P-T-L-Y. If bleeding starts abruptly and progresses rapidly, P-R-O-G-R-E-S-S-E-S, progresses rapidly, then the patient go into the shock, then the patient can go into the shock and the signs, symptoms of shock are signs symptoms shock के क्या होंगे? ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो जाएगा, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, पेशेंट को यूरिन नहीं आएगा, नो यूरिनेटिंग या एनयूरिया, नो यूरिनेटिंग,
तो क्या बोलते हैं, एनयूरिया, और यूरिनेटिंग इनफ्रीक्वेंटली, or urinating infrequently in small amount. Third point is rapid pulse. Pulse कैसी होगी? Rapid. Rapid मैंने fast. Rapid pulse. And the last sign symptom is unconsciousness. Causes. अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के कॉजेज क्या हैं? बहुत सारे कॉजेज हैं। जिस जगह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के इतने पार्ट्स हैं जीआईटी के, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग? Gastrointestinal bleeding can occur gastrointestinal bleeding can occur either in the upper or लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहां तक बताया मैंने, और लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहां से शुरू होगा? अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहां से कहां तक है, बताइए मेरे को। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहां से कहां तक है? Sir, esophagus, stomach, initial part of small intestine, that is duodenum. हाँ, इस बल्कि बेटर टू से फ्रॉम माउथ, माउथ से, E ठीक है ना, mouth से duodenum, पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें क्या small intestine. बोलते हैं। अब मेरे को बताओ, ये तो हो गया हमारा अपर पार्ट जीआई का, और लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कौन सा हुआ? Sir, lower small intestine to anus. हाँ, गुड। So gastrointestinal bleeding can occur either in the upper or lower gastrointestinal tract. It can have a number of causes. It can have a number of causes. Causes can be सबसे इंपॉर्टेंट कॉज पहला कौन सा है? राइट डाउन पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, this is the most common cause of gastrointestinal bleeding. This is the most common cause. This is the most common cause of upper gastrointestinal bleeding. देखो इसमें एक टर्म आई है अल्सर। अल्सर की डेफिनेशन क्या होती है मैंने आप लोगों को कई बार बता रखे हैं। व्हाट इज अल्सर? अब मेरे को अल्सर की डेफिनेशन पहले तो बताओ। ये क्वेश्चन हालांकि सर्जरी का है। व्हाट इज अल्सर?
सर अल्सर एक ओपन सोर होता है, वो ऊपर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। हाँ, डेफिनेशन क्या बेटे इसकी? सर ज्यादा नहीं बताना है। एन ओपन सोर दैट अकर्स ऑन एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। रट लो, एक लाइन में इसका अल्सर की डेफिनेशन बता रहा मैं आपको। Sir, abrasion in mucous membrane and skin. हाँ, सही सही कह रही हो। एब्रेजन ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अल्सर। लिख लो इसको। एब्रेजन, एब्रेजन मैंने छिल जाना। जब आप कभी कभी सड़क पे गिर जाते हैं, स्किन छिल जाती है, इसको क्या कहते हैं? एब्रेजन। सो व्हाट इज अल्सर? एब्रेजन ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अल्सर। लिख लो इसको। एब्रेजन ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अल्सर। अब अल्सर कहीं पर भी हो सकता है। So peptic ulcer, this is the most common cause of upper gastrointestinal bleeding. Peptic ulcer are sores. Peptic ulcer are sores, S-O-R-E-S, sores that develop on the lining of stomach. That develop on the lining of the stomach and upper portion of the small intestine. अब पेप्टिक अल्सर हुआ कैसे? या तो स्टमक के अंदर देखो, जब गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा बनेगा, गैस्ट्रिक एसिड किसी भी वजह से ज्यादा बन सकता है, और जब गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा बनेगा, जरूरत से ज्यादा बनेगा, कहते हैं कहावत नहीं, एक्चुअली एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की अति खराब होती है। थोड़ी मात्रा में वो एकदम अमृत का काम करता है। अब वही अगर ज्यादा मात्रा हो जाए तो वो पॉइजन का काम करता है। थोड़ी सी मात्रा में अगर जितनी रिकमेंडेड डोज में दवा हमें खानी है उसको खाएंगे तो फायदा मिलेगा, लेकिन ओवरडोज कर लेंगे तो वो नुकसान कर जाती है। तो स्टमक के अंदर क्या बनता है? गैस्ट्रिक जूस बनता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या चीज होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। HCl कैसे बनता है? फिजियोलॉजी में देखो मैंने आपको बता रखा है। किस सेल में बनते हैं बेटे हाइड्रोजन या HCl? किस सेल में बनते हैं? क्या नाम है सेल का स्टमक के? पैराइटल सेल। पैराइटल सेल, वेरी गुड। पैराइटल सेल में HCl बनता है। और पेप्सिन किसमें, कौन सा सेल बनाता है? देखिए याद है कि नहीं है? पैराइटल सेल में बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। चलो छोड़ो, हमें काम की चीज हमारी HCl बना, पैराइटल सेल में बना। पैराइटल सेल के अंदर देखो HCl बन रहा है, लेकिन सेल डैमेज नहीं हो रहा। तो इस सेल के अंदर इस सेल ने क्या बनाया? हाइड्रोजन आयन बनाया। ये हाइड्रोजन कहाँ पहुंचा था? डायग्राम याद करो, अपने माइंड में रिकलेक्ट करो। हाइड्रोजन आयन कहाँ पहुंच गया? कैनालिकुलाई ऑफ द पैराइटल सेल। याद है? प्रोटॉन पंप ने इसको पुश करके एक वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हुआ था। किसमें हुआ था? हाइड्रोजन आयन, और दूसरा OH में हुआ था। याद आया? अब हाइड्रोजन आयन किसके अंदर पहुंच गया? कैनालिकुलाई के अंदर पहुंच गया। कैनालिकुलाई के अंदर कैसे आया? प्रोटॉन पंप ने इसको पुश करके भेजा था। और फिर इसके बाद क्या हुआ? पैराइटल सेल के अंदर वाटर, एक मॉलिक्यूल वाटर और 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ था। H2O प्लस CO2 क्या बन गया था? H2CO3 बना। और H2CO3 जब बना तो इसका ब्रेक डाउन हुआ। इसका जब ब्रेक डाउन हुआ तो क्या बना?
H प्लस ACO3। याद करो क्या बना, हाइड्रोजन आयन बना और दूसरा क्या बना, बाइकार्बोनेट आयन बना। अब ये हाइड्रोजन आयन पुराना वाला पहले वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ था, जिसका हाइड्रोजन आयन फेनोलिकुलाई में चला गया था, बचा क्या था OH। तो वो OH और इसका हाइड्रोजन आयन इन दोनों ने मिलकर फिर वाटर बना लिया। तो कार्बोनिक एसिड का जब ब्रेक डाउन हुआ H2CO3 किसमें हुआ, हाइड्रोजन आयन प्लस ACO3। हाइड्रोजन H प्लस OH ने मिलकर क्या बना लिया, वाटर बना लिया। और बाइकार्बोनेट किसके अंदर आ गया, ये आ गया ब्लड के अंदर आ गया। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट था, प्रेजेंट है साल्ट। साल्ट का फार्मूला क्या है, NaCl। NaCl, जब NaCl का डिसोसिएशन होगा तो क्या बना, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन कहाँ चला गया, कैनालिकुलाई में चला गया, पैराइटल सेल के ब्लड से, और वहां पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। तो H प्लस Cl, इसने दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, HCl। बचा क्या, सोडियम। सोडियम ने क्या किया, बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर लिया, पैराइटल सेल से बाइकार्बोनेट बना था ना, वो किसके अंदर आ गया, ब्लड के अंदर आ गया। तो सोडियम और HCO3 ने मिलकर क्या बना लिया, NaHCO3। जितने मॉलिक्यूल HCl बनते हैं उतने ही मॉलिक्यूल सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। याद आया, देखो मैंने फिर देखो उसको आप लोगों को फिर दोबारा से आज मैंने बता दिया HCl कैसे बना। और जब ज्यादा मात्रा में HCl बनता है और जितनी एसिडिटी की दवा होती है, एसिड कम करने की मेडिसिन होती हैं, अगर प्रोटॉन पंप को की एक्टिविटी को हम घटा दें तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन फेनोलिकुलाई तक पहुंचेगा ही नहीं। और जब हाइड्रोजन आयन फेनोलिकुलाई तक नहीं पहुंचेगा तो HCl नहीं बनेगा। HCl नहीं बनेगा तो हाइपर एसिडिटी भी नहीं होगी बेटे। और ज्यादा हाइपर एसिडिटी होगी, पहले जलन होगी, बर्निंग सेंसेशन होते हैं, तो कोई यहाँ से लेके पूरे एकदम गले तक बर्निंग सेंसेशन स्टर्नम के नीचे होता है। और इसके बाद नहीं अगर हम ध्यान देते हैं, इसके क्या कारण है, कल मैंने याद कराए थे, हरी वरी करी, रट लो उसको। क्या कारण है, सब बोलो, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर, हरी भरी करी। हाँ सब बोलो भाई, एक ही इंसान बोलता है। कॉजेज ऑफ हाइपर एसिडिटी, सब बोलो एक बार बोल दो सब। हरी भरी करी। वेरी गुड। ये अमिल की तो अग्रवाल की तो आवाज ही नहीं आई है कुछ। हरी भरी करी। ठीक है चलो रट लेना इसको, हरी वरी करिए, भूलोगे नहीं आप, है ना। सो गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एसिड और क्या हो सकता है, ईदर फ्रॉम बैक्टीरिया। तो पेप्टिक अल्सर किससे बना, ज्यादा मात्रा में गैस्ट्रिक एसिड बना, यानी HCl बनता है। ईदर फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन सा होता है पेप्टिक अल्सर जिससे HCl ज्यादा बन जाता है, क्या नाम है उसका, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। यस H पाइलोराई। H पाइलोराई ईदर फ्रॉम बैक्टीरिया, नाम आपको पता ही है। और यूज ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ज्यादा मात्रा में दवा खाना, हल्का सा सर में दर्द हो, उठा के बेटे दर्द की दवा, पेन किलर, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग खा ली। कुछ लोगों की इतनी गंदी हैबिट होती है, जरा सा सर दर्द हुआ या जरा सा बॉडी पेन हुआ, देख कॉम्बिफ्लेम, देख कॉम्बिफ्लेम, देख कॉम्बिफ्लेम, मेडिकल स्टोर में गए, एक पत्ता कॉम्बिफ्लेम ले लिया। कहीं बॉडी में पेन हो रहा है, एक टेबलेट कॉम्बिफ्लेम खा ली। और इसके कितने साइड इफेक्ट हैं बेटे, अगर इसके साइड इफेक्ट देखने बैठोगे तो आप ये दवा कभी खाओगे नहीं। इसलिए उसके हर आदमी जब इस दवा को इतना खाने लगा,
तो इसका साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा क्या हुआ, इसने लीवर डैमेज करना शुरू कर दिया। सो यूज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लीवर डैमेज करता है और स्टमक में क्या करेगा, ये गैस्ट्रिक जूस की मात्रा को बढ़ाएगा, एसिडिटी क्रिएट करेगा, एसिड के सेक्रेशन को ये बढ़ा देता है। तो ये सब गैस्ट्रिक जूस का एसिड हो गया। कैसे बना, इधर फ्रॉम बैक्टीरिया और यूज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये सब क्या करते हैं, जब एसिड ज्यादा बना तो इसने क्या डैमेज किया, डैमेज द लाइनिंग, किसकी लाइनिंग, स्टमक म्यूकोजा, स्टमक के म्यूकोजा को इसने क्या किया, डैमेज किया, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर। अब अल्सर तो बन गया, पेप्टिक अल्सर बन गया। पहले हाइपर एसिड जलन होती रही, फिर पेप्टिक अल्सर बना। जब अल्सर बन गया तो क्या स्टार्टिंग हो जाएगी, पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, ईपी गैस्ट्रिक पेन, यहाँ पर इस जगह देखो, ये इस जगह, ये कौन सा जगह हो गया, ईपी गैस्ट्रिक रीजन, इस जगह, स्टर्नम के जस्ट नीचे, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं पेट के, ईपी गैस्ट्रिक रीजन। यहाँ पर क्या होगी, दर्द होगी, जलन, जलन और एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी में जलन कहां से कहां तक होती है, इस जगह रिट्रोस्टर्नल, और ये इतनी जगह क्या है, ईपी गैस्ट्रिक रीजन। तो अल्सर जब बना तो क्या हो गया, पेन स्टार्ट हो गई, और अल्सर जब नहीं हमने लापरवाही करी, खूब हरी मिर्चा खाई, खूब बदपरहेजी करी, खूब पानी के पतासे खाए, हरी मिर्चा, कभी लाल मिर्चा, कभी सफेद मिर्चा, मिर्चा ही मिर्चा, है ना। कभी कभी टीवी में देखते हैं कुछ लोग रोटी भी कहो 8-10 हरी मिर्चा के साथ खा रहे हो, तो इसमें क्या होगा, हाइपर एसिडिटी होनी है, अल्सर बनना है। तो पहले पेप्टिक अल्सर बना, फिर पेप्टिक अल्सर बढ़ता चला जाता है। जब पेप्टिक अल्सर बढ़ता चला जाएगा तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, एक शब्द में बता दो, मैंने आपको देखो रटा दिया आज। पेप्टिक अल्सर अगर बढ़ गया और तो क्या होगा, पी से ही स्टार्ट होगा, इतना बता दिया। परफोरेशन। परफोरेशन, क्या होगा वहां पर, परफोरेशन हो जाएगा, गुड। पेप्टिक अल्सर अगर नहीं ट्रीटमेंट इसका लेंगे तो वहां पर स्टमक का में परफोरेशन हो जाएगा, या डोडना अल्सर है तो वहां पर परफोरेट होता है। तो जितना गैस्ट्रिक कंटेंट होता है स्टमक के अंदर, जब परफोरेशन हो गया जीआईटी के अंदर, तो ये सब इंटेस्टाइनल कंटेंट कहाँ पहुंच गया, तो कोई इंटेस्टाइन के अंदर दुनिया भर के बैक्टीरिया भरे पड़े हैं, और एब्डोमिनल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी वो आपकी एकदम स्टेलाइज है, वहां किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो जितना गैस्ट्रिक कंटेंट है, जीआईटी के कंटेंट्स हैं, ये सब कहाँ पहुंच जाएंगे, एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच जाते हैं, यानी पेरिटोनियल कैविटी में पहुंच गए। और जब पेरिटोनियल कैविटी में पहुंच गए तो इसका क्या असर होगा, इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा, भयंकर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। इसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। कैसे, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इमीडिएट सर्जरी, जहां जिस जगह स्टमक परफोरेशन जिस जगह हुआ होता है उसको रिपेयर करना पड़ता है। दूसरा, पेरिटोनियल कैविटी, जितने गैस्ट्रिक कंटेंट्स, जितनी गंदगी जीआईटी की एब्डोमिनल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में आ जाती हैं, उसको वॉश आउट करती हैं, फिर इसमें एक ड्रेनेज ट्यूब डाल देते हैं, जिससे जितना गंदगी है वो पेट बाहर निकलते रहे, और ड्रिप पे पेशेंट को रखते हैं, ओरली एकदम नील ओरली कर देते हैं, मुंह से खाना पीना टोटली बंद देते हैं, और हैवी डोज एंटीबायोटिक रखते हैं, क्योंकि हमें इन्फेक्शन कंट्रोल करना है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है बेटे पेप्टिक अल्सर की। तो जब परफोरेशन हो गया या खराब स्थिति हो गई पेप्टिक अल्सर की, उस समय सराउंडिंग में कुछ ब्लड कैपिलरीज हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं। जब वो डैमेज होंगी तो क्या होगा, ब्लड आना शुरू होगा, और जब ब्लड, ये माउथ से ब्लड आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, हिमेटेमेसिस, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड। अब ब्लड देखो,
ये आ रहा है स्टमक से। ये ब्लड कहाँ से आया? स्टमक से ब्लड आ रहा है। तो कैसा ब्लड होगा? इस ब्लड का कलर कैसा होगा? रेड होगा, ब्राउन होगा? ब्लड स्टमक से आ रहा है, ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक। कलर क्या होगा इसका? रेड होगा, ब्राउन होगा? दिमाग थोड़ा सा दिमाग लगा ली। देखो स्टमक से आ ब्राउन। रहा है। हाँ बोलो। ब्राउन होगा ब्राउन होगा, क्यों शाहीन? सर, क्योंकि ये फ्रेश तो रहेगा नहीं सर, अगर लंग्स से आता है तो वो रेड होता है। नहीं नहीं, स्टमक से आ रहा है तो ये ब्राउन हो गया। क्यों? मेरे को कारण बता। सर उसमें एसिड का कंटेंट मिला रहेगा तो कलर चेंज हो जाएगा। हाँ देखो, एसिड कंटेंट इसके अंदर रहता है HCl। कौन सा एसिड रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? HCl से मिलकर क्या बना देता है? एसिड हीमेटिन। एसिड हीमेटिन का कलर होता है ब्राउन। और यही अगर ब्लड एकदम प्योर रेड आ रहा होता है, वो खांसी के साथ आएगा, तो हम क्या बताएंगे? ब्लड कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम, इट इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स। और ब्लड अगर ब्राउन कलर का है तो डेफिनेटली दिस ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक। तो मैंने काफी डिटेल में लोगों को बता दिया। इसलिए पेन किलर कम से कम खाने चाहिए, है ना? और कभी भी खाली पेट नहीं खाने चाहिए। जब खाएं साथ में थोड़ा दूध दूध ले लें, या साथ में इसके कोई एंटासिड या कोई किसी भी तरीके का एसिलोकार्डी हो गया, है ना, कुछ ना कुछ ऐसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गया। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कुछ ले लेना चाहिए। So tears in the lining of the tube, tears in the lining of the tube, that tube कौन सी? that connect tears lining the tube that connect throat to the stomach, that connect throat to the stomach। और इस ट्यूब का क्या नाम हो गया? इसोफेगस। Tears in the lining of the tube, that is esophagus, known as Mallory Weiss tears. Mallory, M-A-L-L, Mallory, M-A-L-L-O-R-Y, Mallory Weiss, W-E-I-S-S, Mallory Weiss tears. They can cause a lot of bleeding. They can cause a lot of bleeding. अब ये किसमें कॉमन होती हैं? These are most common in persons. These are most common in persons who drink alcohol in excess. So these are most common in persons who drink alcohol in excess. तो ज्यादा अल्कोहल लेने से कहाँ की लाइनिंग डैमेज होगी? इसोफेगस। इस सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? मैलोरी, M-A-L-L-O-R-Y, मैलोरी विस सिंड्रोम या टीयर्स। नेक्स्ट इज abnormal enlarged veins in the esophagus. ये सब अपर GI ब्लीडिंग के कॉजेज आ रहे हैं बेटे। The third cause is abnormal enlarged veins in the esophagus। क्या बोलते हैं इसको? Esophageal varices। Esophageal varices, varices स्पेलिंग है V-A-R-I-C-E-S,
CES, varices. This condition occurs most commonly in serious liver disease. ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले एक बार काफी एक्सप्लेन करके बताया था कि लिवर अगर इनलार्ज हो जाए, सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाए, लिवर डैमेज हो जाए, तो किस तरीके से अपर जीआई ब्लीडिंग हो सकती है? कोई बताएगा? थोड़ा कोई दिमाग लगाओ। नहीं ध्यान? भूल गया? नहीं पता। मैं फिर समझा देता हूं। मैं इसको मैं यहीं खत्म छोड़ भी सकता हूं, लेकिन नहीं, पता होना चाहिए। आप लोग जब मेडिसिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग मेडिसिन भी लिखने के ऑथराइज्ड हैं, तो पता होना चाहिए कि लिवर जब डैमेज होता है तो माउथ से ब्लीडिंग क्यों हुई, कारण तो पता होना चाहिए ना। मान लो लिवर डैमेज हुआ, लिवर डैमेज हुआ, कोई इंसान है, कोई पेशेंट है, वो ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पीता है, या किसी भी कारणवश उसको लिवर सिरोसिस हो गया। लिवर कैसा ऑर्गन होता है? सॉफ्ट ऑर्गन होता है। सिरोसिस ऑफ लिवर में क्या हो जाता है? लिवर हार्ड हो जाता है, या कार्सिनोमा ऑफ लिवर हो गया। अब लिवर के अंदर, मैं दिखा रहा हूं, लिवर किस साइड में है? ये कौन सा तरफ हो गया? राइट साइड। ये कौन सी जगह है? राइट साइड। यहाँ पर लिवर प्रेजेंट है, इस जगह जहां मैंने हाथ में रखा। दिखाई दे रहा है? ये जगह कौन सी है? लिवर। यहाँ तक सिर्फ रहना चाहिए लिवर। और इस लिवर में जीआईटी से एक वेन आ रही है, उसका क्या नाम है? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन दो वेन से मिलकर बनती है। जीआईटी से ब्लड लेके आ रही है, उसको बोलते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, और एक स्प्लीन से लेके आ रही है ब्लड, उसको कहते हैं स्प्लीनिक वेन। ये दोनों मिलके बन गई पोर्टल वेन। एक किसमें आके ओपन कर गई? लिवर में ओपन कर गई। इतना समझ आ गया? पोर्टल वेन लिवर में ओपन करती हैं, और लिवर कैसा ऑर्गन होता है? सॉफ्ट ऑर्गन होता है, एकदम इसमें इलास्टिसिटी भरी रहती है। जितनी मात्रा में ब्लड आता है उसको ये एकोमोडेट कर देता है। लेकिन अगर यही लिवर हार्ड हो जाए, ज्यादा मात्रा में ब्लड आया, ये एकोमोडेट ही नहीं कर पाएगा। अब लिवर हार्ड हो गया, और ब्लड कहाँ से आ रहा है? जीआईटी से आ रहा है। कौन? अपर जीआईटी से कौन ब्लड लेके आ रहा है? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन लेके आ रही है। अब ब्लड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से पोर्टल वेन में आया। पोर्टल वेन किस में ओपन हुई? लिवर में ओपन हो गई। और पहले तो थोड़ा सा एनाटॉमी देख लेते हैं। लिवर से ब्लड अब कहाँ पहुंचेगा? हिपेटिक वेन में आएगा। हिपेटिक वेन देखो किस में पहुंचेगी? बताओ मेरे को। हिपेटिक वेन किस में ओपन करेगी? इंफीरियर वेना केवा में ओपन करेगी। इंफीरियर वेना केवा में जो ओपन करेगी, इंफीरियर वेना केवा ब्लड किस में लेके जाएगा? राइट साइड ऑफ द एट्रियम में ब्लड आएगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में आएगा। लंग्स से किस में आएगा बेटे? ये फिर लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, इसके बाद एओर्टा में आ जाएगा। एओर्टा से फिर क्या होगा? आर्च ऑफ द एओर्टा होगा, डिसेंडिंग एओर्टा आएगा, उससे ईसोफेजियल आर्टरीज निकलती हैं। ये कहां पर जाएंगी? इसको सप्लाई करेंगी ईसोफेगस को, जंक्शन पॉइंट ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक, और वहीं पर कैपिलरीज हैं। तो यहाँ की जो कैपिलरीज होती हैं
उसकी वॉल बड़ी थिन होती है। तो पोर्टल वेन ब्लड लेके आ रही है, जीआईटी से लिवर में ब्लड लेके आ रही है, और वहां पर जितना ब्लड लेके आ रही है लिवर उसको एकोमोडेट नहीं कर पा रहा, तो इससे क्या होगा, बैक प्रेशर होगा। क्या होगा, पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब पोर्टल वेन के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा तो ईसोफेगस और स्टमक जहाँ यूनाइट होता है वहां की कैपिलरीज कैसे हो जाएंगी, एंगॉर्श हो जाएंगी। उसके अंदर ब्लड की मात्रा मतलब एकदम, एंगॉश मीन्स ज्यादा, एकदम फूल सी जाएंगी वो। और जब ब्लड इसमें ज्यादा हो जाएगा तो उस जगह कैपिलरीज रप्चर हो सकती हैं। जब कैपिलरी से रप्चर होगी तो ब्लड कहां से आएगा, माउथ से आएगा। अब आपको बताओ, क्लियर हुआ। अगर लिवर डैमेज अगर होगा तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग किस तरीके से आएगी, ये तो मैंने आज आपको एक चीज बताई है। सब बताओ, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? काफी डिटेल में बता दिया मैंने। हेलो, तो सो गए हो सब क्या? नो सर, समझ में आ गया। हाँ शाइन, बाकी सबके बेटे सब बोलो ना। सर आ गया समझ। तो सोनाली कह रही समझ में आ गया, बाकी बेटे यस यस सर। सर। हमें समझ में आया। हेलो, यस सर। यस सर। अब तुम सामने आ जाओ जरा मेरे को ये बताओ, लिवर हार्ड हो गया, थोड़ा सा अब मेरे को समझा दो, मैं फिर बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा तो। कि ब्लीडिंग क्यों हुई माउथ से, परेशान नहीं हो, दिमाग लगाओ थोड़ा। लिवर हार्ड हो गया, ब्लड लिवर में नहीं जा रहा, तो बैक प्रेशर होगा ना, पोर्टल वेन प्रेशर बढ़ जाएगा ना। यस सर। जब पोर्टल वेन प्रेशर बढ़ेगा, जैसे मान लो आपने रबड़ की पाइप नलके में लगाई, किसी टैप में लगाई, है ना, यस सर। और आगे से पाइप आपने बंद कर दी, पानी तो आ ही रहा है ना। तो जिस पोर्शन पे, जिस जगह पे वो पाइप भी कमजोर होगी उस जगह फूल जाएगी ना। आप बताओ पहले, ये पॉइंट यस बताओ, सर। समझ आया नहीं आया? समझ गया सर। जिस जगह कमजोर होगी पाइप उस जगह फूल जाएगी ना। और धीरे धीरे हमेशा अगर हम इस तरीके से करेंगे तो वो पोर्शन, वो वाला पॉइंट क्या होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा वही जगह रप्चर हो जाएगी, वहां से पानी लीक करने लगेगा। सेम वही चीज है बेटे। तो ईसोफेजियल वेरिसेस ये सबसे वीकेस्ट पोर्शन होता है, वहां पर ब्लड कलेक्ट होता चला जाता है, वहां की वेन्स फूलती चली जाती हैं, कैपिलरीज, और एक समय ऐसा आता है कि वो रप्चर कर जाती है। और जब रप्चर कर जाएंगे तो ब्लीडिंग तो होनी है। तो कोई भी लिवर डिजीज होगी उसमें ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है। एक तो देखो ये होता है। दूसरा क्या होता है, पोर्टल वेन के अंदर जैसे प्रेशर बढ़ गया, है ना, सिरोसिस ऑफ लिवर में क्या क्या होता है, कहते हैं इसके पेट में पानी भर गया। वो पेट में पानी क्या भरता है, उसको क्या कहते हैं, एसाइटिस कहते हैं, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। तो पोर्टल वेन के अंदर जब प्रेशर बढ़ा, इसके अंदर का जितना सीरम होता है ना, वो क्या होगा, पोर्टल वेन से बाहर आने लगेगा। और कहाँ कलेक्ट होगा, एब्डोमिनल कैविटी में, यानी पेरिटोनियल कैविटी में। तो इसको क्या कहते हैं, एसाइटिस कहते हैं। तो जब सिरोसिस ऑफ लिवर होता है, यानी लिवर डैमेज हो जाता है, लेट स्टेज में पेट में पानी भरने लगता है। कार्सिनोमा ऑफ द लिवर अगर हो गया तब भी लेट स्टेज में पेरिटोनियल, पेट में पानी भर जाता है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। क्या ट्रीटमेंट है इसका, एब्डोमिनल कैविटी में राइट इलेक्ट फोसा में सिरिंज से पानी निकालते हैं।
आज पानी निकाला, पता चला 2 दिन बाद फिर उतना भर जाता है। तो अब समझ में आया आप लोगों को? आज क्लियर हुआ? यस सर। है ना? इसको सिर्फ कोरिलेट आपको करना है कि पोर्टल वेन के अंदर जब प्रेशर बढ़ा तो वो ब्लड आखिर उसका हुआ क्या। सबसे पहले इसोफेजियल वेरिसिस हुई, वो डैमेज हुई, माउथ से ब्लड आने लगा। दूसरा क्या हुआ, और लेट स्टेज अगर होगी तो ब्लड ये सीरम किसमें कलेक्ट होने लगेगा, तब सीरम कलेक्ट होता है, पोर्टल वेन से निकल के बाहर आने लगता है। कहाँ कलेक्ट होगा? पेरिटोनियल कैविटी में। और जब पेरिटोनियल कैविटी में ज्यादा कलेक्ट होता है, पेट फूलने लगता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एसाइटिस। ASCITES। व्हाट इज एसाइटिस? शॉर्ट नोट्स आ सकता है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, दैट इज कॉल्ड एसाइटिस। And last cause is esophagitis. अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का कॉज है esophagitis. इसोफेगस में स्वेलिंग आ गई। राइट डाउन दिस, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द esophagus, the inflammation of the esophagus is most commonly caused by gastroesophageal reflux disease. Gastroesophageal रिफ्लक्स डिजीज। अब इसका शॉर्ट फॉर्म जानते हो क्या है? इसको कहते हैं GERD। GE, कैपिटल G, कैपिटल E, कैपिटल R, कैपिटल D। GERD। इसमें क्या होगा? इसोफेगस और स्टमक जहां यूनाइट करता है वहां पर स्फिंक्टर होता है। जब स्फिंक्टर ये वीक हो जाता है, कभी कभी गैस्ट्रिक कंटेंट किसमें आ जाते हैं? एकदम इसोफेगस में आ जाते हैं और जलन सी होने लगती है। तो इसको एसिड किसके अंदर आ गया? इसोफेगस में आ गया। तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। रिजल्ट क्या होगा? इसोफेगस के अंदर उसकी म्यूकोजल लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। क्या इसको क्या कहते हैं? इसोफेजाइटिस। So these are the causes of upper gastrointestinal bleeding. इसके बाद आ जाता है लोअर gastrointestinal. So causes of lower gastrointestinal bleeding. अब इसमें पहला कॉज क्या है? डाइवर्टिकुलर डिजीज। डाइवर्टिकुलर, DIVERTICULAR, diverticular disease. Diverticular disease. This involve the development of small bulging pouches. Small bulging माने उभरे हुए, BULGING, bulging pouches, POUCHES, pouches in the digestive tract. इसको क्या बोलते हैं? diverticulosis. If one or more of the pouches becomes inflamed, if one or more of the pouches, pouches become inflamed or infected, it is called diverticulitis. तो आज बेटे मैं यहीं खत्म करता हूँ। मेरे ख्याल से समझ में आज अच्छा खासा आप लोगों के आया होगा। सबकी समझ में आया? यस सर।
अच्छा खासा समझ में आया, ऐसे ही हल्का हल्का ऊपर से दिमाग सर आ में? गया। ठीक है बेटे, थैंक यू बेटे, कम से कम मेरे को भी लगे मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया, आप लोगों की समझ में आना चाहिए। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहिए। कल भी 2 से 3 लेक्चर लेंगे बेटे आपका। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहिए, बाय।